सो सर उन लोगों का क्या? रुक जाओ भाई, तुमको देख के यही है क्रिंज। चलो भाई बोलो। हाँ स्टार्ट। अरे भाई तुम शकल पे लिखा हुआ है ऐसा कि मुझे देख भाई सर मैं हंस भी नहीं रहा हूँ। ठीक है स्टार्ट। तो सर उन लोगों का क्या? तो रूड हो गया एक मिनट। अभी ऐसा है। Welcome to the channel, guys. Today we'll be discussing about the people who are working in the world of telephonic sales. And we have our guest today, Mr. Abhishek Sharma, who has not only been an entrepreneur but has been a great business consultant and a sales guru for the people and organization who are wanting to thrive in this industry. Hi, sir. How are you doing today? Awesome, Varun. How are you? I'm doing wonderful, sir. Thank you. It's so good to have you here. Same. So, we wanted to just ask you the questions which not only will help people who are engaged in this business, but also for the people who are struggling in this business as well. So, my first question for you would be that for someone who is in the industry of telephonic sales, how do you think that this particular job is very challenging for the people? For me, any job is not challenging, including this particular job that we are talking about. For me, what is important that you know that what to do at your workplace. If you know that how to do your work, then nothing is impossible, and you will not face a single challenge on that workplace particularly. That's great. That's a great way to put it, I would say. But I feel like I've also worked in the same profile for a very long time. I've seen people become monotonous in this particular thing. They're dialing the same numbers, the same people, saying the same things. So what happens for the people who are engaged in this activity, so happens to become monotonous over time, and they find it very difficult to engage themselves in this particular job profiles for long run. So how do you say it? I agree. For example, if you are someone in a sales industry, you come to the office in the morning, you dial your first call, your energy level is here, right? Absolutely. You keep dialing, you dial 10 calls, 20 calls, 100 calls. When you dial the 300th call of a day, now your energy level is here since you have not got single conversion. Yeah. So it's obvious that you are demoralized, you're not feeling good about your job. You must be feeling like that why you are here. But the point is, what if that 300th call was the customer who was about to buy your product? But why he did not brought your product? Because your energy level was not here on this time. That was here, right? So my point is, when you are working somewhere, when you are doing something, give your best. Doesn't matter that you have failed for another 299 times. Even it is the 300th try of you in a single day. That should be with the same energy when you came to the office in the morning. So talking about energy here, जिस तरह से कॉल्स ली जाती हैं, तो कोई भी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सामने वाला इंसान आपको न जानता है, ना आपको उसने कभी देखा होता है, करेक्ट? तो आपकी आवाज ही है या एनर्जी ही है जो उसको बूस्ट अप करेगी, करेक्ट? Exactly. बहुत लोगों को लगता है कि टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ अच्छे इंग्लिश कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही होता है. That's तो not. आपको उसके बारे में आपका क्या कहना है कि आप क्या सोचते हैं? क्या कम्युनिकेशन सिर्फ एक लैंग्वेज बेस्ड है या व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट सर? देखो, मैं एक बात आपसे बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आप एक रैंडम डे में आप बैठे हो, अपना काम कर रहे हो, आपके पास एक कॉल आता है, ठीक है? दैट कैन बी अ सेल्स कॉल, राइट? कॉल आया, सामने से एक इंसान है जो आपसे बात करता है. ऐसा हमारे साथ होता है कि जिस तरह का टोन हम उस कॉल पे सुन रहे होते हैं, या जैसे भी वो इंसान हमसे बात करता है, एक इमेजिनरी फेस हमारे बैक ऑफ द माइंड में बन जाता है, राइट? अगर वो इंसान बहुत एनर्जी के साथ बात कर रहा है तो वो फेस बहुत हंसता हुआ, बहुत अच्छा स्माइलिंग फेस बनेगा. और सामने से अगर कोई एनर्जेटिक नहीं है, बहुत लेजी है, बहुत लथार्जिक है, तो वो फेस बहुत ही ज़्यादा डल बनेगा, बहुत ज़्यादा अनकॉन्फिडेंट बनेगा. तो द पॉइंट इज कि जब हम टेलीफोन पे होते हैं, व्हेन वी आर पिचिंग समथिंग, स्पेशली ऑन फोन, क्योंकि जब सामने आप होते हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस विजिबल होते हैं. बट अगर आप अपने चेहरे पे एक फेक स्माइल कैरी करो, दैट्स व्हाट आई बिलीव. आप अपने चेहरे पे सिर्फ एक सिंपल सी स्माइल रखो, फिर सामने वाले से बात करो पूरी एनर्जी लेवल के साथ.
तो मेरा मानना है कि सामने वाला जब आपको इमेजिन करेगा तो ही विल इमेजिन यू लाइक अ एनर्जेटिक एनिमल, लाइक अ लायन, नॉट लाइक अ लेजी पांडा, ठीक है। और वहीं पे ही आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है सामने वाले को कि भाई आप अपने प्रोडक्ट को बेचने में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हो, बिकॉज व्हेन यू आर इंटरेस्टेड देन ओनली सामने वाला इंटरेस्ट दिखाएगा ना। एब्सोल्युटली राइट। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि स्पेशली जब हम फोन पे कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं किसी के साथ, सो यू नेवर नो द अदर पर्सन इज सेइंग द राइट थिंग, द रॉन्ग थिंग, वो कितना सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है आप कभी भी जान नहीं सकते। करेक्ट। तो उस पॉइंट पर क्या करना चाहिए जब सामने वाला इंसान इंटरेस्टेड तो है बट एट दैट मोमेंट ही इज समहाउ डजंट वांट टू is not wanting to talk or have this conversation right now, right? But आपके टारगेट्स है, आपकी सेल है जो आपको लानी है, आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है, करेक्ट? बट सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड है बट एट दैट मोमेंट इंटरेस्टेड नहीं है, तो उस मोमेंट पे आप उसको कैसे परस्यू करोगे? देखो मैं बताता हूँ, जब भी आप एक प्रोडक्ट या सर्विस किसी भी कस्टमर को पिच करते हो तो एक्चुअल में उस कस्टमर को उस कंपनी के बारे में कोई भी बात नहीं पता, उसे आपकी कंपनी पर कोई भरोसा नहीं है। He has nothing to do with the company, with your brand, with your product, with your service. What he have to do is with you. Yeah. क्योंकि आप ही वो इंसान हो जो उस कस्टमर से बात कर रहे हो, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो कॉल जब स्टार्ट होती है, वी आर टॉकिंग अबाउट टेलीफोनिक सेल्स, तो जैसे ही आप कॉल को स्टार्ट करते हो तो एक चीज होती है उसे कहते हैं रैपो बिल्डिंग, ठीक है, जहां पे आप कैंडिडेट के साथ, कस्टमर के साथ बहुत पर्सनलाइज्ड वे में टॉकेटिव हो जाते हो। उससे होता क्या है, सामने वाला आप पे इतना भरोसा करता है कि अगर आपने बोला है तो वो बात सही होगी। तो अल्टीमेटली अगर वो आप पे भरोसा करता है तो वो आपके प्रोडक्ट पे, आपकी सर्विस पे, आपकी कंपनी पे भरोसा तुरंत करने लगेगा। तो हमें जिस चीज पे काम करना है वो ये करना है कि हम उससे प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बात थोड़ा कम करके उसके बारे में बात करें, ताकि उसे ये लगे कि हम उसके बारे में कुछ जानने में इंटरेस्टेड हैं, हम उसे कुछ बेचने में इंटरेस्टेड हैं। अगर हम सिर्फ अपना प्रोडक्ट ही बेचते रहेंगे तो फिर सामने वाला तो वैसे भी नहीं खरीदने का। True, but there's a thin line between being professional and getting too personal, correct? So when do you know and when exactly you come to know that this is the boundary which I need to create before getting way too personal and keeping the questions professional? So how do you create that line, especially going ahead whenever you're building the rapport with the customers? So I would say do not get into the personal life of the customer. आप उसे किसी भी तरह का पर्सनल सवाल मत पूछो, ठीक है। साउंड मोर प्रोफेशनल। आपको उससे प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें पूछनी है बट उसकी लाइफ से रिलेट करके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ और मैं उसे इंश्योरेंस बेचना चाहता हूँ, राइट, तो मैं अब उससे अगर ये पूछने लगूंगा तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, वो क्या करते हैं, किसकी कितनी एज है, तो ही विल फील लाइक ये कॉल बहुत ज्यादा पर्सनल हो रही है, ठीक है। बट अपने प्रोडक्ट में एग्जाम्पल की तरह रख के मैं सेम चीज को अगर बताऊंगा या पूछूंगा तो उसे ये भी नहीं लगेगा कॉल पर्सनल हो रही है, और उसे मेरा कंसर्न भी समझ में आ जाएगा कि मैं इसे क्यों पूछना चाहता हूँ, राइट। Now with this, like the major problem that the people who are working in this domain are facing is that in India a lot of scams are going on in terms of be it telephonic, be it chat process or anything, correct? So how do you portray yourself as someone who is doing the right thing for them? Because it is a big challenge for the people who haven't seen you, and behind the telephonic you never know, right? There are so many on different OTT platforms, there are so many series which have been made in the past. Yeah, I know one of them, Jamtara. Exactly. There are so many series, right? So how the customer would feel that this is something genuine. This is not a clickbait trap that I'm getting into. This is not something which might not be great for me in the coming time. So in India, this is the biggest problem, and especially talking about in the education world, the parents, even if the children know that this is something which is good for them, then even the parents would not consider, because they think everything online is scam. So how would you be able to convince them with your thoughts, sir? The correct way to convince them will be visualizing them. For example, I belong to the industry wherein we are selling courses, right? तो अगर मैं अपने कोर्सेज को बेचने जा रहा हूँ तो मेरे पास एज अ सेल्स पर्सन इनफ चीजें होनी चाहिए अपने कस्टमर को दिखाने के लिए कि वी आर अ रजिस्टर्ड कंपनी, we have a registered office, we have the legitimate product, and we have the best service in the market. Now to prove that, there are several factors. आप जब कॉल पे कस्टमर के साथ होते हो, you can simply connect with them over the email or WhatsApp, or you can take them to your website or somewhere wherein you can showcase them कि भाई देखो तुम इस कंपनी से कनेक्ट कर रहे हो, हमारे बारे में ये चीजें हैं, आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं
आपकी कंपनी की, ऑफ कोर्स जितनी भी कंपनी के अचीवमेंट्स हैं, क्या किया है क्या नहीं किया है, हाउ आर यू सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, आप अपने कस्टमर को कैसे बेनिफिट कर रहे हो, खास करके आपकी यूएसपीज क्या है। अगर ये सारी चीज आप कस्टमर को विजुअलाइज करा पा रहे हो तो वो उस पोजीशन पे पहुंच जाता है जहां पे उसे स्कैम वाली चीज तो बिल्कुल साइड में हो जाती है और उसे लगने लगता है कि वो एक ऐसी जगह बात कर रहा है जहां पे एटलीस्ट चीजें अवेलेबल है, राइट। ओके, अगेन अब इस सिनेरियो में अगर वो आपको फिर भी ट्रस्ट कर पा रहा है, बट अगेन जब भी किसी भी कैंडिडेट को अगर फोन पे अपनी डिटेल्स शेयर करनी पड़ेगी एंड उनको अपनी सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी थ्रू विच दे आर गोइंग टू मेक द पेमेंट, सो हाउ वुड यू बी एबल टू कन्विंस देम दैट दीज आर द फैक्टर्स विच यू आर taking and the compliance that you have to so that any of their information doesn't get leak और उनकी information का कोई misuse ना हो, तो उसके लिए आप कैसे convince करोगे that these are the steps that they have taken? बस यही वो पॉइंट है जहां पे मैंने पहले भी बोला कि रैपो बिल्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट खेल होता है। सिंस कस्टमर डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर कंपनी, हो सकता है उसने पहली बार आपकी कंपनी के आपके सर्विस के बारे में सुना हो, राइट। तो अगर एज अ सेल्स पर्सन आप जब कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपने कस्टमर से एक अच्छा कनेक्ट बनाया है जहां पे वो आप पे इतना फेथ कर पा रहा है कि अगर आप कुछ बोल रहे हो कंपनी के बिहाफ पे तो वो सही होगा। तो यहाँ पे एक ही मैजिक काम करता है, दैट इज कॉल्ड रैपो बिल्डिंग। आप कस्टमर से इतना अच्छा कनेक्शन बना लो, और कनेक्शन बनाने का मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो व्हेन आई यूज्ड टू बी इन सेल्स, आई यूज्ड टू आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम माय कस्टमर्स। सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू आस्क कि हाउ आर यू, they used to answer I am fine, what about you? तो मैं सिंपली ये आंसर नहीं करता था I am fine, मैं उनसे बोलता था you are the first person since morning who is concerned about myself, कि जिसने मुझसे ये पूछा how are you। अब सामने वाले, जैसे आपके चेहरे पे स्माइल आई वैसे सामने वाले के चेहरे पे भी छोटी सी स्माइल आ जाती थी कि यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है। चलो वहीं से ही एक कनेक्शन कॉल एक डिफरेंट लोकेशन पे चली गई कि चलो कोई ऐसा है जो मुझसे सही से बात कर रहा है। Exactly. People would always want someone to करेक्ट take a note of that what and how that being. Yeah, very true। तो ऐसे ही आपके बहुत सारे अपने तरीके हो सकते हैं जिससे आप रैपो बिल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई अब किसी दूसरी कंट्री में आप स्पेशली कॉल कर सकते हो, स्पेशली पीपल कॉलिंग फ्रॉम इंडिया टू कंट्रीज लाइक यूके एंड यूएस और विद इन इंडिया इफ यू कॉलिंग। किसी फेस्टिवल के बारे में आप बात कर सकते हो, किसी स्पोर्ट्स के बारे में बात कर सकते हो। आप पूछ सकते हो कि आपका दिन कैसा रहा, ठीक है, कौन सी चीज है जो आपको परेशान कर रही है, राइट। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक छोटी सी चीज है जो मैं भी पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम पिचिंग अ कोर्स टू समवन, और जब मैं उनसे कहता हूँ कि वी विल बी लैंडिंग यू अ जॉब, तो मैं उनसे कहता हूँ कि when you get your first salary then you have to order a pizza for me। तो this brings a beautiful smile on the customers or candidates face। उन्हें लगता है कि हाँ मैं एक ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जो मुझे खुश रख पा रहा है कॉल पे। वहां पे प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, वहां पे मेरा पर्सनल कनेक्शन बनना चालू हो जाता है कैंडिडेट के साथ या कस्टमर के साथ। तो बस यही एक तरीका है रैपो बिल्डिंग जिससे आप इतना भरोसा जीत सकते हो कि सामने वाला आपको कुछ भी देने को तैयार हो जाएगा। ग्रेट। काफ़ी लोग जब भी इस डोमेन में होते हैं तो जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो सबको बताया जाता है कि टेलीफोनिक सेल्स में जब भी आप एंटर हो रहे हो तो देयर इज़ अ पैटर्न दैट यू नीड टू फॉलो। पहले आपको इंट्रो करना है कॉल पर, फिर प्रोफाइलिंग करनी है, फिर कैंडिडेट के साथ रेपो बिल्डिंग करनी है, उनकी रिक्वायरमेंट जाननी है, आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। करेक्ट। तो सारी कंपनी, सारी ऑर्गेनाइजेशन एक सेम पैटर्न फॉलो करती है। करेक्ट। सो क्या मिस्टर अभिषेक शर्मा का कुछ डिफरेंट पैटर्न है जिस पर वो काम करते हैं, दैट इज द रीजन ही इज बीन सो सक्सेसफुल, और या फिर आप भी जो क्लीशे फॉर्मेट है उसी को फॉलो करते हैं? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट कि जब हम ट्रेनिंग में बच्चों को ये चीज सिखाते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट फ्रॉम द ट्रेनिंग कि उन्हें सही डायरेक्शन मिले। सो व्हाट डू यू थिंक कि दिस इज द राइट वे कि सारी चीजें प्रोफाइलिंग, इंट्रो ऐसा होना चाहिए? देखो, एक स्ट्रक्चर तो कॉल का है जो हमें फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन आई मेक कॉल तो इंट्रोडक्शन तो मुझे देना ही होगा। इसके बाद आई हैव टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द कस्टमर, दैट पार्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट कभी भी ये नहीं कहा जाता कि यू शुड बी स्क्रिप्टेड इनफ। आपको स्क्रिप्टेड नहीं होना है, यू शुड नॉट बी स्क्रिप्टेड। आपको करना ये है कि कॉल जब हम कस्टमर के साथ होते हैं कॉल पे, तो इट्स लाइक जैसे कार होती है, तो कस्टमर को हमेशा ऐसा लगता है कि कार वो चला रहा है, राइट। बट जो स्टीयरिंग होती है ना, वो स्टीयरिंग जो होती है वो सेल्स वाले के हाथ में होती है। मुझे इतना ज्यादा कस्टमर के मन में विश्वास पैदा करना होता है, और वो अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा ये भी मैं ही डिसाइड करूंगा। मेरे अगले आंसर में ही ये क्लू होगा कि उसका अगला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वी आर क्लूलेस, कोई ऐसा क्वेश्चन सामने से आ जाता है कि अब हम क्या करें, अब हम इसका आंसर क्या दें। तो आप अगर आप रुक गए तो ट्रेन चली जाएगी। आपको रुकना नहीं है, यू शुड कीप टॉकिंग। आप इधर उधर की बातें करो,
ठीक है, आपको क्वेश्चन को to hold the customer with you. एग्जैक्टली टू होल्ड द कस्टमर। अब इसके लिए मैंने तो एक सिंपल फंडा अपनाया था। जब भी मैं इनिशियली सेल्स में आया था तो आई वाज नॉट अवेयर सो मच अबाउट द प्रोडक्ट और द कंपनी, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते थे जो इतना टेक्निकल नॉलेज मेरे पास नहीं था। तो फॉर एग्जांपल किसी ने अगर मुझसे पूछा है कि ए फॉर एप्पल होता है क्या, तो मुझे अगर नहीं पता ए फॉर एप्पल होता है तो फिर मैं उसको बी से लेके जेड तक पूरी एबीसीडी समझा देता था। मतलब मैं उसे इतनी चीजें बता देता था कि वो भूल चुका होता था कि उसका क्वेश्चन एक्चुअल में था क्या, ठीक है। बट हाँ, एक चीज हमें मेक श्योर करनी चाहिए कि हमें कभी भी मिस इन्फॉर्मेशन कॉल्स पे नहीं देनी है। Okay. ओनली प्रॉमिस जो कंपनी दे पा रही है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप कस्टमर को खराब कर दोगे। आप हो सकता है कि इनिशियली उससे कुछ पैसे ले लो और आपकी सेल भी हो जाए, बट बाद में फिर वो आपके रिव्यूज खराब करेगा, आपके बारे में इधर उधर चार बातें बताएगा। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि मैनिपुलेटिव होने के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। Absolutely. Correct. There's no space for any sort of misinformation no matter what, right? Right. And with this I come to my next question as well, so कि जब भी हम टेलीफोनिक सेल्स की बात करते हैं तो एक वर्ड है जो सारे सेल्स पर्सन को बहुत चुभता है, वो है कोल्ड कॉलिंग। करेक्ट करेक्ट। तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि कोल्ड कॉलिंग सही भी है और सही नहीं भी है। मतलब आप कहेंगे कि काफी डिप्लोमेटिक आंसर है, बट दैट इज ट्रू, करेक्ट। अब मुझे आपके व्यूज ये जानने हैं कि जो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, पीपल हु आर इंटरेस्टेड, इट्स फाइन, बट बहुत सारे बैकएंड में लोग हैं जो लीड जनरेशन का काम करते हैं, करेक्ट। ट्रू। तो जब एक कोल्ड कॉलिंग पर आप जाते हो जहां सामने वाला बंदा आपको पता है कि ये इंटरेस्टेड है ही नहीं, इसको चाहिए ही नहीं, तो आप शुरुआत ही कैसे करोगे? मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये बहुत शॉकिंग स्टैट्स है जो मैं बताने जा रहा हूँ। दुनिया में सारी कंपनियां सेल कर रही हैं, जितनी भी कंपनियां सेल करती हैं उसमें से 70% बिजनेसेस अभी भी इंक्वायर्ड लीड्स पे कॉल नहीं करते। दे आर स्टिल मेकिंग कॉल्स ऑन कोल्ड ईमेल्स एंड कोल्ड कॉल्स एंड दे गेट कन्वर्जन्स। अब ये पॉसिबल ऐसे हो सकता है कि सबसे पहले तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। वो प्रोडक्ट ऐसे होना चाहिए कि सामने वाले को उसकी जरूरत समझ में आए। आप एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेच सकते जिसकी मार्केट में नीड ही नहीं है। तो अगर आपने एक अच्छा प्रोडक्ट बना लिया है और आपके पास एक ऐसी सेल्स टीम है जो उस प्रोडक्ट को समझती है, तो वो कोल्ड कॉलिंग से ही उतना रेवेन्यू ला सकती है जितना आपकी डिजिटल मार्केटिंग टीम आपको इंक्वायरी से ला के नहीं दे सकती। एब्सोल्युटली। बट अगेन इसमें जो मेजर पॉइंट है सर वो यही है कि आप शुरू कैसे करें। जब आप फोन उठा के बोलेंगे हेलो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी, तो सामने वाला इंसान प्रोडक्ट तो बाद में सुनेगा, पहले ही शुड नो ऑफ यू। उसको जानना चाहिए कि आप क्यों हो, कहाँ से हो और मुझे फोन क्यों कर रहे हो। तो वो फेस से कोई कैसे बाहर के निकल के आ सकता है? देखो, अलग अलग इंडस्ट्री में इसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। सो आई लिटरली हैव टू अंडरस्टैंड कि वो इंडस्ट्री क्या है। बट अगेन यहाँ पे काम पर्सनलाइजेशन ही आएगा कि मैं कितना कस्टमर से ओपनली ब्रॉड माइंडेड होके और स्माइल के साथ बात कर सकता हूँ। अगर मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मेरी आवाज में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कॉल किया, मैंने आपसे कहा कि क्या मेरी बात वरुण कौशिक से हो रही है, ही वुड नेवर बी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मी। आपने बहुत बारी न्यूज देखा होगा, हम कभी भी न्यूज को चला रहे होते हैं तो हम चैनल चेंज करते करते कहीं पे जाके रुक जाते हैं। यही है वो मासूम चेहरा, राइट? तो ये जो आवाज का उतार चढ़ाव है ये सेल्स कॉल पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंस हम वहां पे अवेलेबल ही नहीं है तो इंसान हमारी इमेजिनरी शक्ल बना रहा है, तो हमारे चेहरे पे एक फेक स्माइल अगर अच्छी है, वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ अगर है, और कॉल ओपन होते ही सामने वाले के बाद वो पॉजिटिव मैसेज जा रहा है कि हाय माय नेम इज अभिषेक शर्मा, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम हियर, राइट? तो सामने वाले को समझ में आता है कि नहीं यार, कोई इंसान तो है जो सामने से बात कर रहा है। तो सारा का सारा जो मैजिक होता है वो बोलने के तरीके पे होता है। आपकी टोन, आपका शब्दों का उच्चारण और मॉड्यूलेशन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं जब आप सामने वाले से बात करते हो सकता है किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हो, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, बट द पॉइंट इज कि क्या उसने केक के ऊपर चेरी रखी है? And the cherry is this modulation and the vocabulary, pronunciation especially. अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हो और कस्टमर से कनेक्ट कर रहे हो तो मेरा मानना है कि वो सुनेगा आपको। कोई देखो, ऐसा तो कभी नहीं होता है कि अगर आपने 100 कॉल्स करी है तो 100 पे 100 लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे, वो आपको प्रोडक्ट ले लेंगे। बट हाँ, 100 में आपको 10 से 20 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आपकी बात सुनते हैं और सुनने के बाद वो कन्वर्ट भी होते हैं। और मेरा मानना ये है कि सेल्स इंडस्ट्री, स्पेशली अगर हम कोल्ड कॉलिंग की बात करते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी पे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दिन में 10 कॉल्स डायल करते हो तो एक हफ्ते में 6 दिन में आपने 60 कॉल्स डायल करी और आप उसमें एक सेल मार पा रहे हो, राइट? तो अब अगर आपको एक दिन में 2 सेल मारनी है तो आपको एक दिन में 120 कॉल्स करनी पड़ेंगी। एब्सोल्युटली।
राइट तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा कॉल्स डायल करूं ताकि मेरे ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स बने और जितने ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स होंगे उतने ही ज्यादा कन्वर्जन के चांसेस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सिर्फ एक प्रोस्पेक्ट है और उसने मना कर दिया तो आई एम सिटिंग एट 0, मेरे पास कोई कन्वर्जन नहीं है। बट अगर मेरे पास 10 या 15 प्रोस्पेक्ट हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 15 के 15 प्रोस्पेक्ट मुझे नो बोल दें, और अगर बोल दिया तो बस ऐसा समझ लेना कि वो दुनिया का सबसे खराब दिन है। बट एक्चुअली में प्रोस्पेक्ट होता क्या है? आई एम श्योर व्यूअर्स भी जानना चाहते होंगे कि प्रोस्पेक्ट होता क्या है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट हैविंग अ प्रोस्पेक्ट। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्रोस्पेक्ट है क्या? प्रोस्पेक्ट वो है जो आपको पैसे देने वाला है, प्रोस्पेक्ट वो है जो आपकी बात सुन चुका है, या प्रोस्पेक्ट वो है जो बस इंटरेस्टेड है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका आंसर छुपा है लॉजिक में, राइट? तो व्हेन यू आर अ सेल्स पर्सन, व्हेन यू आर अवर कॉल, स्पेशली मी, मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मैं कॉल करता हूँ किसी को भी, अब तो नहीं करता ऑफ कोर्स, जब मैं पहले किया करता था, तो शुरुआत के 1 मिनट की कन्वर्सेशन में ही मुझे ये समझ में आ जाता था कि ये सामने वाला प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा, ठीक है? इतनी क्लैरिटी तो मुझे अपने एक्सपीरियंस से आ गई थी, ठीक है? तो इफ आई यूज्ड टू रियलाइज कि सामने वाला मेरे प्रोडक्ट में नहीं इंटरेस्टेड है, लेकिन फिर भी मुझे पिच तो करना ही है सिंस आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, तो मैं अपने आप को एक एनर्जी सेविंग मोड पे डाल के और अपनी कॉल को 4 या 5 मिनट पे रैप अप कर देता था, क्योंकि मुझे पता है इसका आउटपुट नहीं आना। और अगर 1 मिनट की कॉन्वर्सेशन के बाद मुझे ये रियलाइज हो गया कि सामने वाला जो है वो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है उस कॉल पे, तो मैंने जितनी भी एनर्जी पूरे दिन में बचाई है वो सारी की सारी एनर्जी मैं उस कॉल पे लगा देता था। आप बिलीव नहीं करोगे, व्हेन आई यूज्ड टू टेक कॉल्स तो पीपल यूज्ड टू स्टैंड अप एंड दे यूज्ड टू लिसन टू मी। मैं जब कॉल लेता था तो मेरा एक बगल में भैया बैठते थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, बट उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि यार तुम जब कॉल लेते हो तो मुझे गूज़बम्स आते हैं। Why? Because I used to had that modulation। मैं जब कस्टमर से कनेक्ट करता था, I used to create that FOMO factor inside the customer कि अगर आपने मेरा प्रोडक्ट नहीं लिया है तो आपको एटलीस्ट मैं ये फीलिंग दे दूंगा कि कुछ तो है जो आपने छोड़ दिया है। अगर आपने ये नहीं लिया है तो कुछ तो है जो आप मिसिंग पार्ट है आपकी लाइफ में। ले लिया होता तो शायद कहीं और होते, हो सकता है उसके पास पैसे ना हो। ड्रीम बेचना, इट्स एग्जैक्टली, सेल में ड्रीम बेचना इज मोर इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। तो मैं अगर ये फोमो क्रिएट कर पा रहा हूँ तो फिर मुझे फिर फर्क नहीं पड़ता मेरी सेल आ रही है कि नहीं आ रही है। एंड ऑफ द डे मैं अपना जब दिन क्लोज करूंगा तो मेरे पास, मेरे कस्टमर्स के पास से एटलीस्ट 10 कॉम्प्लीमेंट्स होंगे जहां पे लोगों ने मुझे बोला होगा कि यार तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, यू मेड माई डे। अगर मैं ऐसे कॉम्प्लीमेंट ला पा रहा हूँ तो मेरी कंपनी को भी पता होगा कि आई एम अ गुड सेल्स पर्सन। जरूरी नहीं है कि मैं दिन भर नंबर ही ला रहा हूँ। और वो लोग अगर तब पैसे नहीं दे रहे हैं बट किसी ना किसी पॉइंट पे वो जरूर आके वापस पैसे आपको जरूर देकर जाएंगे, क्योंकि वो रैपो बिल्डिंग आपने करी है। करेक्ट, दैट इज कॉल्ड पाइपलाइन। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी महीने में वो एनरोल कर लें। मैंने पाइपलाइन बना ली है, हो सकता है वो 1 या 2 महीने बाद मुझसे एनरोलमेंट करवा लें, अपना कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो मैं पिच कर रहा हूँ वो मुझसे ले लें, राइट? तो कभी भी कोई कैंडिडेट खराब नहीं होता, इट जस्ट की सिचुएशन खराब हो सकती है। हो सकता है उस टाइम पे उसके पास बात करने का समय ही नहीं है, हो सकता है उसके पास पैसे नहीं है, या जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो उस टाइम पे उसको उसकी नीड ही नहीं है, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी वो आपसे प्रोडक्ट नहीं बाय करेगा। तो वी शुड वेट फॉर द राइट टाइम, बट फॉर दैट वी हैव टू मेक दैट कनेक्शन कि अगर 2 महीने बाद भी मैं उसे कॉल कर रहा हूँ तो उसने मेरा नंबर सेव करके रखा है कि यार अभिषेक इज कॉलिंग अगेन, लगता है मुझे अभी प्रोडक्ट ले लेना चाहिए, राइट? ग्रेट। सो टेलीफोनिक सेल्स में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन, राइट? एंड यू वर मेंशनिंग थिंग्स अबाउट वॉइस मॉड्यूलेशन, और मैं देख रहा हूँ कि आप भी काफी अच्छा वॉइस मॉड्यूलेशन करते हो, करेक्ट? सो व्हाट डू यू थिंक कि इस चीज, because this is something which is very important for the people who are working in this particular industry, sir, right? So what do you think, मतलब this is something जो जिसके पास है वो है, या फिर within the time or over the period of time this is something which can be developed? और इसके लिए क्या आप कोई एक्सरसाइजेस करते हैं लोग, कुछ योगा है इसको करने का, या और is it something जो naturally है लोगों में, या this is something which can be developed humanly also? मेरे अंदर तो नहीं था, मैंने तो डेवलप किया है। कैसे? Everybody would want to know कि वॉइस मॉड्यूलेशन सिर्फ एक टेलीफोनिक सेल्स में ही नहीं, ओवरऑल कम्युनिकेशन में, आप किसी से मिलते हो, कहीं जाते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट? इट इज द नीड, दिस इज द बेसिक नीड दीज डेज, राइट? करेक्ट, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू हैव अ कन्वर्सेशन विद पीपल हु आर साउंडिंग वेल, करेक्ट? तो व्हाट डू यू थिंक कि आपको इस जर्नी में, इस स्टेज पर जहां आपकी आवाज अच्छी है, आप अच्छे से वॉइस मॉड्यूलेशन कर लेते हो, उस पर आकर आपको कैसा फील होता है, प्लस उस स्टेज पर आप आए कैसे हो? देखो, मैं तो अपनी स्टोरी बताऊं तो बहुत ज्यादा मतलब इंस्पायरिंग हो जाएगी फिर, राइट? तो when I was in that's all the podcast is about, we are wanting to inspire people by the journey that you have, correct? So when I was in 7th standard, so there was a question asked from me. The question was, how are you?
and my answer was my name is Abhishek Sharma. So coming from there to here is a long journey, right? And honestly तब के जमाने में internet was available of course, but I was not able to afford. तब इतने smartphones नहीं होते थे. There used to be a small keypad वाला phone at my house, and उसके अलावा आई कम फ्रॉम अ यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, तो स्कूल में उतने रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल थे. द पॉइंट इज कि हाउ आई लर्न, आई नेवर वेंट टू एनी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस और समथिंग लाइक दैट. कोई एडवांस ऐसी फैकल्टी नहीं मिली. तो जितना भी मैंने सीखा है मैंने खुद से सीखा है, और सिर्फ 2-3 चीजों से सीखा है. व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू ब्रिंग दैट टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर. 5 रुपए का मिलता था उस टाइम पे, अभी मुझे नहीं पता कितने का मिलता है. मैं उस न्यूज़पेपर पर लाता था और मैंने इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश दोनों डिक्शनरी खरीदी थी, पॉकेट डिक्शनरीज, राइट. मैं उसमें से एक पैराग्राफ को मार्क कर लेता था. उस पैराग्राफ को सबसे पहले मैं तो अपनी कॉपी पे नोट करता था. नोट करने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया का वोकैबुलरी पोर्शन बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ओके, एडवांस, राइट. तो मैं उसमें से बहुत सारे वर्ड्स होते थे जो मुझे नहीं समझ में आते थे. इनफैक्ट पूरे पैराग्राफ का मतलब ही नहीं समझ में आता था. तो मैं क्या करता था कि पैराग्राफ में से जितने भी वर्ड्स निकले जिसकी मुझे हिंदी नहीं पता है, मैंने उठाए, लिख लिए, फिर डिक्शनरी से उसकी हिंदी निकाली. उसके बाद मैं एक वर्ड पे कम से कम 50 सेंटेंसेस बनाता था. तो आप सोचो अगर मैंने दिन में 10 वर्ड निकाले एक पैराग्राफ से तो मेरे सेंटेंसेस 100 हो गए. बिल्कुल करेक्ट. और जो सेंटेंसेस भी होते थे वो होते थे जो हम आमरोज़ा जिंदगी में यूज करते हैं, डेली जो हम बोलते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप उससे बात कर रहा हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस, राइट. तो पहले तो सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम होती थी, बट क्योंकि मैं डेली पढ़ रहा था और मैं डेली बना रहा था तो डेली इंप्रूवमेंट अपने आप से आता जा रहा था. करेक्ट. तो ये करते 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 3 या 4 महीने बाद वो समय आ गया जब मैं कम से कम 10 से 12,000 सेंटेंसेस बना चुका था. मुझे नहीं लगता इंग्लिश उसके बाहर से हुआ करती थी, राइट. तो बस ये कुछ चीजें हैं. इसके अलावा मैं शीशे के सामने खड़े होकर बोला करता था, ठीक है. बहुत सारी मूवीज भी देखी समझने के लिए, बट समझ नहीं आती थी पहले. और इसके अलावा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. व्हेन यू वांट टू लर्न इंग्लिश, स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स. सुनने से ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो विजुअलाइज. फेवरेट नॉवेल? No, I will be writing my own novel. That would be my favorite novel. I don't have any favorite novel yet. That's great thought, I'd say. Yeah, I know that. तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपको मॉड्यूलेशन, स्पेशली अगर आप सिर्फ मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हो कि अच्छा करना है, तो आपको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे बचपन में जब हम छोटे थे तो हम डिक्टेशन बोली जाती थी हमें, और हम उसे लिखा करते थे. तो कुछ वैसा ही करना पड़ेगा कि आप खाली बैठे हो, आपको कुछ नहीं करना, बस तेज आवाज में पढ़ते रहना है. और फिर ये रियलाइज करो कि जो आप पढ़ रहे हो आपको खुद को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है. और प्रोनाउंसिएशन की स्पेशली अगर हम बात करें तो गूगल पे भी अगर आप जाते हो तो प्ले स्टोर पे बहुत सारी एप्स भी आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आपको किसी भी वर्ड का राइट प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगा. हो सकता है पहली बार में आपको ना पता हो, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हो. और जब आप किसी भी चीज को बोलने लगते हो तो नेचुरली भी प्रोनाउंसिएशन आ जाता है आपके अंदर. बट सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया में तब आएगा, हमारे देश में किसी को ABCD का भी राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है. मतलब पीपल डज नॉट नो कि अल्फाबेट्स को भी सही तरीके से प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी से कहूँ कि आप मुझे सारे के सारे अल्फाबेट्स बताओ, तो लोग बोलेंगे ABCD या GHM ऐसे करके पूरा सुना देंगे. बट द पॉइंट इज कि वो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है. प्रोनाउंसिएशन के लिए अगर हमें वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट करना है तो सबसे पहले हमें लेटर्स को प्रोनाउंसिएट करना पड़ेगा, राइट. तो हम किसी भी YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं, हम गूगल पे देख सकते हैं कि लेटर्स का सही प्रोनाउंसिएशन है क्या. जब लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा तो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन अपने मन से सही होने लगेगा. और रही बात कॉम स्किल्स की, तो वो प्रैक्टिस से ही आती है. यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. आप जितना ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो, अगर आप ये 2-3 चीजें करते हो तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही आप सीख जाओगे बोलना. ग्रेट. और कॉम स्किल्स अगेन, it's all about कि सिर्फ हिंदी नहीं, सिर्फ इंग्लिश नहीं. Correct. There's a way of talking, there's a way of modulation that you need to have in your voice to have that, right? तो स्कूल में जब आपने बताया कि 7th क्लास में आपने what is your name? What is your name का जवाब आपने How are you? And that was my name is Abhishek Sharma. My name is अभिषेक शर्मा बोलते हैं, तो कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा embarrassing हो जाता, demotivating हो जाता. तो from there you had the right motivation under you. करेक्ट. विद द राइट डिसिप्लिन, बिकॉज सिर्फ मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, बट डिसिप्लिन इज समथिंग जो हमेशा रहता है. सो मेरा पर्सनली मानना ये है कि आपको मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा डिसिप्लिन होना चाहिए in life if you want to achieve your goals. True. And also for the people who are working in this domain, especially the telephonic sales, लोगों को discipline होना चाहिए, ना कि short term motivation होना चाहिए. Correct? तो what do you think? आजकल मैंने देखा है ज्यादातर लोग बस ये सोचते हैं कि किसी तरह एक सेल आ जाए, आधी सेल आ जाए, वो जैसे prospect building की बात हुई, जैसे pipeline building की बात हुई, तो वो चीज लैक करते हैं. तो उसका रीजन क्या है? मतलब लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट हो गई है,
उसकी वजह से इस इंडस्ट्री में भी लोग ऐसे हो गए हैं, और व्हाट इज द रीजन, व्हाट डू यू थिंक? देखो, मोटिवेशन हो या डिसिप्लिन हो, ये सारा का सारा आता है विल पावर से। सबसे पहले तो आपको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो सुबह डिसाइड करेंगे कि मुझे ये करना है, और शाम होते होते उनकी विल पावर खत्म हो जाती है। मतलब इंक्लूडिंग मी, मैं भी बहुत सारे ऐसे फैसले लेता हूँ अपने जीवन में कि मैं सुबह सुबह सोचूंगा और शाम को वो खत्म हो जाएगा। तो सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान के लिए। और सेल्फ डिसिप्लिन हमेशा छोटी छोटी चीजों से ही स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटी सी बात होगी कि किसी ने डिसीजन लिया कि आज से मैं फोन को थोड़ा कम यूज करूंगा, मैं गेम्स नहीं खेलूंगा, मैं अपने टाइम को प्रोडक्टिव करूंगा, मैं कुछ प्रोडक्टिव करूंगा। बट आधे घंटे बाद वही इंसान रील से स्क्रॉल कर रहा होगा, राइट? तो वो सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने दिमाग को ये समझाना होगा कि छोटी छोटी चीजों में भी अगर हमने डिसीजन लिया है तो फिर वो हमें फेल करवा सकता है अगर हमने उस डिसीजन पे अमल नहीं किया तो सर उन लोगों को क्या, जो इस फील्ड में जॉब कर रहे हैं बट मंथ एंड पे कभी उनके टारगेट्स मीट नहीं हो रहे हैं, कभी उनकी डेडलाइन क्रॉस नहीं हो रही है, ओवर अचीव नहीं कर पा रहे हैं कभी, तो वो लोग इस फील्ड में क्या करें? भगा दो सालों को। जोक्स अपार्ट, अगर हमारे पास कोई भी सेल्स का प्रोसेस है एंड इफ देयर आर 100 पीपल वर्किंग, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 100 के 100 लोग अपना टारगेट अचीव कर लें, राइट? हमेशा आपने देखा होगा कि सेल्स में लोग किसी भी डिपार्टमेंट से ज्यादा होते हैं, करेक्ट? क्योंकि जरूरी नहीं है कि 100 के 100 लोग सेल मान लें, उसमें से कोई 40 या 50% लोगों की सेल होगी, जो भी नंबर है आपके पास सेल्स का, राइट? तो किसी का टारगेट नहीं अचीव हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे भी अचीव नहीं होगा। ऑफकोर्स आपको उन्हें चांस देना चाहिए और ऑब्जर्वेशन भी रखनी चाहिए कि अगर नहीं अचीव हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो हो सकता है एफर्ट्स में कोई कमी आई होगी, हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम ऐसा चल रहा हो जिसकी वजह से वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो एज अ बॉस, एज अ बिजनेस ऑनर, आप पर्सनली कनेक्ट करके भी ये समझ सकते हो, राइट? और अगर इतना आप समझ पाते हो और उन्हें चांस देते हो तो मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं है जो सेल नहीं कर पाएगा। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कंपनी में जो सेल्स के लिए नहीं बने होते हैं, करेक्ट? तो उनके लिए तो बस यही है कि उनको सेल्स से हटा के किसी अदर डिपार्टमेंट जैसे सपोर्ट या ऐसा किसी भी डिपार्टमेंट में डाला जा सकता है। तो क्या लक फैक्टर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है इस डोमेन में? कि क्योंकि कभी किसी की बहुत ज्यादा सेल्स आ रही होती हैं, कभी किसी की बिल्कुल नहीं आ रही होती, वहां पर स्किल इशू नहीं होता क्योंकि हमें पता है अगर कोई इंसान कभी सेल मार रहा है रेगुलरली तो स्किल इशू तो नहीं है। तो क्या लक फैक्टर होता है कभी कभी? मतलब मुझे नहीं पता कि अगर मैं इसका सच आंसर दूंगा तो मुझे ट्रोल ना किया जाए, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लक इज लिटिल बिट इम्पोर्टेंट इन सेल्स। बहुत बार मैंने भी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि कोई बहुत बड़ा सेल्स का धुरंधर जिसकी 4 या 5 महीने से सेलें आ रही थी बट अचानक से आना बंद हो जाती हैं, राइट? या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे कॉम स्किल्स आती ही नहीं है, उसे प्रोडक्ट को पिच करना नहीं आता, वो प्रोडक्ट को अच्छे से जानता नहीं है, बट फिर भी उसकी हर महीने सेल्स आती जा रही हैं। कैसे आती जा रही हैं? उसने कभी ट्रेनिंग में पार्ट नहीं लिया, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं सेल्स में, फिर भी उसकी सेल्स आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं तो लक है जो थोड़ा सा मैटर करता है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि इस पे बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाओ। ऑफ कोर्स आपको अपनी स्किल्स को पॉलिश करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही पिच कर रहे हो तो लोग इनरोल करेंगे या लोग बाय करेंगे आपका प्रोडक्ट और सर्विस, राइट? Okay, so before we end this podcast for the day, I would want Abhishek sir to share one final tip for the people who are working in this telephonic sales industry, right? So I would share 2 tips, not one. One is very important. Number 1, that is tone. For example, when you call someone, जब भी हमने किसी को कॉल किया है तो हो सकता है पर्सन ए ने भी कॉल किया है, पर्सन बी ने भी कॉल किया है, ए की सेल आ जाए, बी की ना आए, उसमें डिफरेंस टोन का हो सकता है। हो सकता है ए और बी सेम पिच कर रहे हो, बट कहने का जो तरीका है, अगेन इसमें मॉड्यूलेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसमें मैं आपकी पर्टिकुलर आवाज और आपके बात करने के तरीके की बात कर रहा हूं मैं, राइट? अगर आप अपने टोन को बहुत शटल और बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा फ्रेंडली रखते हो तो पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल, एग्जैक्टली, तो सामने वाला आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, आपको ज्यादा अटेंशन देता है। तो कभी भी जब आप टेलीफोनिक सेल्स में हो या नॉर्मल कन्वर्सेशन पे भी हो, स्पेशली टेलीफोन में, तो आपको टोन का ख्याल बहुत ज्यादा रखना है। अगर ये एक सिंगल सी चीज भी आप अपनी कॉल में इंप्लीमेंट कर रहे हो तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। दूसरा, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, कि बाकी सारी चीजें आप साइड हटा दो, आपको किसी कस्टमर को आपके प्रोडक्ट में, कंपनी में, किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, इट्स ऑल अबाउट रैपो ओनली। आपको कस्टमर के साथ उस लेवल का रैपो बनाना है कि अगर आप उससे ये कह रहे हो कि भैया मैं आपका आधार कार्ड वेरीफाई कर रहा हूँ और मैंने ओटीपी भेजा, बता दो, तो सामने वाला बिल्कुल बता दे। इस लेवल की अगर आपने रैपो बना ली तो आपका प्रोडक्ट बेचने से कोई रोक ही नहीं सकता। अंडरस्टूड। सो फॉर एनी टिप्स गाइस, अगर आपको लगता है आपको और भी कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो कमेंट सेक्शन भर दो एंड ही विल बी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। एंड टू कंटिन्यू
listening to Mr. Abhishek Sharma, please subscribe his channel and click on the icon as well. Thank you.